Hi friends, I'm Dr. Rajkumar Nagar. Welcome in my YouTube channel. Today we are going to study the medicine magnesia carb, MEG carb. So let's start as symptoms of MEG carb. So if we talk about the common name, carbonate of magnesium, MgCO3, 3H2O, thermal relation is hot. If we talk about the constitutional symptoms, having specific constitutional symptoms for person, especially children of an irritable dispositions, nervous temperament like chamomilla, lax fiber, sour smell of whole body like rheum. Friends, if we talk about the physical general having a specific characteristic which is the body feels tired and painful, especially the legs and feet. Patient feels more tired and pain in the legs and feet with restlessness. Now you see the patient is restless and pain in legs and feet. If we talk about the unrefreshing sleep, more tired on rising than when retiring. Now you see the patient is more tired on rising. सुबह उठते समय ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है इन कंपैरिजन ऑफ जब वो सोने जाता है, जबकि सोने के बाद थकान कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे नींद ही नहीं आती इसलिए पेशेंट, या कम नींद आती है, साउंड स्लीप नहीं होती इसलिए यहाँ पे पेशेंट बहुत ज़्यादा थका महसूस करता है उठते समय इन कंपैरिजन ऑफ retiring या सोते समय. If we talk about the symptoms of opium having symptoms sleepy but can't sleep, sleeplessness with acuteness of hearing. Sleepy but can't sleep, पेशेंट को नींद तो आती बट वो सो नहीं पाता है, और sleeplessness with acuteness of hearing. acuteness of hearing, clock striking and cock crowing. यहाँ से देखिए कि घड़ी की आवाज़ से और कॉक्स क्राउइंग एट अ ग्रेट डिस्टेंस, कहीं दूर भी अगर मुर्गे की बाग या किसी भी पक्षी की आवाज़ है तो भी यहाँ पे ओपीएम की नींद खुल जाती है, क्योंकि एक्यूटनेस ऑफ हियरिंग है, हर छोटी छोटी चीज़ फील होती है, इस वजह से उसे नींद नहीं आती है. इफ़ यू टॉक अबाउट द इनऑर्डिनेट क्रेविंग फॉर मीट इन चिल्ड्रंस ऑफ अ ट्यूबरकुलर पेरेंटेज. इनऑर्डिनेट क्रेविंग ऑफ मीट किन बच्चों में? where there is a tubercular parentage having history of tuberculosis in parents or other relatives. If we talk about the next symptoms, which is pain, and pain having a specific neuralgic and lightning like characteristic as a lightning like, and mostly affected left side like collosine, insupportable during reports and must get up and walk like rust dogs. If we differentiate with the collosine having shooting pain like lightning like, यहाँ पर neuralgic pain है, shocks drying the whole limbs, left hip, thighs, left knee and knee into popliteal fossa, एक कोलोसेंट में लिखा हुआ है, यहाँ पे lightning and shooting pain है. If we talk about the rustox having lameness, stiffness, pain on first moving after rest or when getting up in the morning, relieved by walking and continuous motion. Left-sided sciatica acting in the left arm with heart disease, rustox. So here neuralgic lightning like pain, left-sided affection, we differentiate with colloscent, and pain is more during repose and must get up and walk. Patient having more pain, या pain is aggravated during repose and must get up and walk. If we talk about the gastrointestinal symptoms, having specific symptoms which is a spasmodic affection of stomach and intestine, increased secretion from mucous membrane, where there is a gastritis or intestinal inflammations, increased secretion is there, and having a spasmodic pain. So where there you feel there is an inflammations and gastritis or other symptoms and having increased secretion, you may prescribe MEG carb. Having specific acidity symptoms, having heartburn, sour belching, irritation, taste and vomiting of pregnancy. Now you see the heartburn during pregnancy and having a vomiting and belching and irritation also, sore vomiting. And if we talk about the diarrheal symptoms, diarrhea preceded by cutting, doubling up colic, occurs regularly every 3 weeks. Diarrhea every 3 weeks, stool green, frothy like scum on a frog pond, white tallow-like masses are found floating stool, and the milk passes undigested in nursing children. अगर कोई माँ नर्सिंग चिल्ड्रंस बच्चे को लेके आती है और कहती है कि डॉक्टर साहब इसके स्टूल में दूध या दूध से बने हुए पार्टिकल्स मिलते हैं, ऐसा दिखता है कि ये दूध निकाल देता है, जिसे हम लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण डायरिया भी कहते हैं. तो अगर ऐसे केसेस में हमारे पास पेशेंट आता है
तो हम मेक कार्ब का सिलेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में आगे बात करें सिम्टम्स की, तो लिखा हुआ व्हेन क्रूड मैग्नीशिया हैज़ बीन टेकन टू स्वीटन द स्टमक इफ द सिम्टम्स करस्पॉन्ड टू द पोटेंटाइज रेमेडी विल ऑफन रिलीव। अगर हेड सिम्टम्स की बात करें तो हेड में लिखा हुआ पेन ऑन वर्टेक्स एज इफ द हेयर वर पुल्ड। यहाँ पे पेशेंट को सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि उसे सिरदर्द के दौरान उसके बाल कोई खींच रहा है। अगर हम माउथ में टूथेक देखें, दांतों में दर्द, तो दांतों में दर्द जो मेक कार्ब में होता है स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी रात को एग्रावेट होता है। तो ये बहुत स्पेसिफिक है कि टूथेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एग्रावेटेड एट नाइट। तो ये बहुत स्पेसिफिक है, आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा वाइल प्रिस्क्रिप्शन। दोस्तों अगर हम मेक कार्ब के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो कुछ करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स दिए हैं मेंस्ट्रुएशन में। जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है मेंसेस प्रेसीडेड बाय सोर थ्रोट, जो कि हमें लेक्सी में भी देखने को मिलता है। अगर हम पेन की बात करें तो जो पेन का करेक्टरिस्टिक है वो लेबर लाइक है, कटिंग कोलिक, बैकएक एंड वीकनेस, और साथ में चिलीनेस मिलती है। फ्लो जो होता है उस पर स्पेसिफिक है, जो कि नाइट में और लाइंग डाउन से ही होता है, वॉकिंग से सीज हो जाती है, जो कि हमें अमोनम्यूर क्रियोजोट में भी मिलता है, और जो कि रिवर्स अपोजिट है लिलियमटिक के। और अगर हम ब्लड के करेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक्रीट डार्क पिच लाइक डिफिकल्ट टू वॉश ऑफ। अगर मेंसेस प्रेसीडेड बाय हम अगर सोर थ्रोट को लेकर डिफ्रेंशिएट करें तो लेक्सी में लिखा हुआ है सोर थ्रोट एंड कफ आर एप्ट टू बिगिन एंड एंड विथ मेंस्ट्रुएशन। सोर थ्रोट के साथ कफ भी मेंस्ट्रुएशन शुरू होते ही हो जाता है और बंद होते ही बंद हो जाता है। और अगर हम ब्लड येलो और वाइट पैचेस पेन शूट टू ईयर, गले में येलो और वाइट पैचेस मिलते हैं और पेन जो होता है वो कान तक जाता है लेग कैन में। अगर हम फ्लो ओनली एट नाइट और मैं लाइंग डाउन में अगर अमोनम्यूर और क्रियोजोट के सिम्टम्स देखें तो क्रियोजोट अमोनम्यूर में लिखा हुआ है फ्लो मोर प्रोफ्यूज एट नाइट। और अगर हम क्रियोजोट की बात करें तो क्रियोजोट में लिखा हुआ है मेंसेस अर्ली प्रोफ्यूज प्रोट्रैक्टेड पेन ड्यूरिंग but aggravation after it, flow on lying down, cease on sitting and walking about। कोल्ड ड्रिंक से पेन रिलीफ हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स रिलीव्स मेंस्ट्रुअल पेन। और फ्लो का करेक्टरिस्टिक कैसा, इंटरमिटेंस एट टाइम ऑलमोस्ट सीजिंग एंड देन कमेंसिंग अगेन, जो कि हमें क्रियोजोट में देखने को मिलता है। अगर हम ब्लड की बात करें तो एक्री डार्क पिच लाइक डिफिकल्ट टू वॉश है मेक कार्ब में। और अगर हम मेडोराइनम की बात करें तो मेडोराइनम में लिखा हुआ है प्रोफ्यूज वेरी डार्क क्लोटेड स्टेन डिफिकल्ट टू वॉश आउट, ये हमें मेडोराइनम में देखने को मिलता है। अगर हम मॉडलिटीज़ की बात करें तो मॉडलिटीज़ में एग्रावेशन, चेंजेस ऑफ टेम्परेचर एवरी 3 वीक्स, रेस्ड मिल्क एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, इसको एग्रावेशन होता है। अगर हम एमिलियोरेशन की बात करें तो वार्म एयर बट वर्स इन वार्मथ ऑफ बेड, जो कि लीडरमैन मर्क्यूरियस में भी मिलता है, हमें वार्मथ ऑफ बेड से बढ़ जाता है। और बेटर इन वार्म ऑफ बेड की बात करें तो आर्सेनिक है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री है, रिलेशनशिप में कॉम्प्लीमेंट्री टू कैमोमिला, कैमोमिला की कॉम्प्लीमेंट करती है मेक कार्ब। तो दोस्तों ये थी मेक कार्ब जो कि हमने देखी, उसके करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखे एंड कंपैरेटिव स्टडी देखी। तो दोस्तों आपको मेडोराइनम कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।